Hello dear students, good morning to everyone. In this video session, we are going to discuss some important objectives on design of concrete structure. So let's start today's session. So first objective, the flexural strength of M20 concrete as per IS 456-2000 is option A 2.15 MPa, that is megapascal, B 2.47 megapascal, C 2.63 megapascal and option D 3.13 megapascal. तो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमें फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला दिया है आईएस कोड में IS 456 में पेज नंबर 16 पे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऐसा क्लॉज दिया है, तो उसमें एक फॉर्मूला दिया है, तो वो फॉर्मूला है FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FC के। तो यहाँ पे FCR मतलब फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर और क्रैकिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. So by using this formula, we have to calculate the flexural strength of M20 concrete. So FCK is nothing but the characteristic strength of concrete, that is M20 means FCK is equal to 20 Newton per mm square. So I will write here 0.7 under root 20. So after calculating this, we will get 3.13 Newton per mm square, that is 3.13 megapascal. So our option D is the correct option for this question. Next one, progressive increase in the inelastic deformation of concrete under sustained stress component is known as option A shrinkage of concrete, B deformation of concrete, C creep of concrete and D yielding of concrete. In the previous lecture we had already discussed that is deformation of concrete under the sustained load is nothing but the creep of concrete. So option C is the correct answer for this question, that is creep of concrete. Next one, what is the modulus of elasticity of steel? Option A 1 into 10 raised to 5 Newton per mm square, B 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square, option C 2.5 into 10 raised to 5 Newton per mm square and option D 3 into 10 raised to 5 Newton per mm square. तो हमें पता है कि स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वो होता है 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square. So option B is the correct answer. Next one, as per the provision of IS 456-2000, the short-term modulus of elasticity of M25 grade of concrete can be assumed to be option A 25,000 Newton per mm square, option B 28,500 Newton per mm square, option C 30,000 Newton per mm square and option D 36,000 Newton per mm square.
तो इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले IS 456-2000 का जो प्रोविज़न है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए, तो वो मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट EC इज इक्वल टू 5000 इंटू अंडर रूट FC के। तो ये जो फॉर्मूला है IS 456-2000 में पेज नंबर 16 पे इलास्टिक डिफॉर्मेशन के क्लॉज में दिया है, दैट इज EC इज इक्वल टू 5000 इंटू अंडर रूट AFC के। So we have to calculate this short term modulus of elasticity. So here M25 grade of concrete is given, that is FCK is equal to 25 Newton per mm square. So I will write here 5000 under root 25. So after calculating this we will get 25,000 Newton per mm square. So option A is the correct answer. Next one, what is the short term modular ratio to be used in the analysis of RC beam using working stress method of grade of concrete M20? तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमें मॉडुलर रेशो फाइंड आउट करना है, शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशो फाइंड आउट करना है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉडुलर रेशो क्या रहता है, स्मॉल m इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हमें पता है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता है, दैट इज 2 इंटू 10⁵. सो आई विल राइट हियर 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर डिवाइड बाय EC। तो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के। So directly I will write here 5000 इंटू अंडर रूट FC के कितना है, यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है M20, तो FC कितना है 20। So after calculating this we will get the value that is 8.94. So option A is the correct answer, that is 8.94. Next objective, according to IS 456-2000 the value of ultimate creep coefficient at 28 days, option A 2.2, B 1.6, C 1.1 and D none of these। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट एट 28 डेज। तो ये वैल्यूज हमें IS 456 में गिवन है। IS 456 का पेज नंबर 16 में क्रीप ऑफ कंक्रीट इस क्लॉज में ये वैल्यूज दिए हैं। तो वहाँ पे एक टेबल दिया है, तो उसमें एज ऑफ लोडिंग और क्रीप कोएफिशिएंट गिवन है। तो एज ऑफ लोडिंग में 7 डेज, 28 डेज एंड 1 ईयर। तो ये एज ऑफ लोडिंग दिए हैं, तो उसमें 7 डेज का क्रीप कोएफिशिएंट जो है तो वो 2.2 है, 28 डेज का क्रीप कोएफिशिएंट
1.6 है और 1 ईयर का क्रीप कोएफिशिएंट 1.1 है। तो यहाँ पे हमें 28 डेज का अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो 28 डेज के लिए क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? 1.6. सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, 1.6. नेक्स्ट वन, as per the provision of IS 456-2000, the long-term modulus of elasticity of M30 grade of concrete can be assumed to be option A 8.833 into 10 raised to 3 Newton per mm square, option B 9.533 into 10 raised to 3 Newton per mm square, option C 10.533 into 10 raised to 3 Newton per mm square, and option D 11.833 into 10 raised to 3 Newton mm square. तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है, जैसे कि IS 456 में गिवन है कि लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है. सो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द E सफिक्स CE. तो लॉन्ग टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं. सो इट इज डिनोटेड बाय E सफिक्स CE. इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा. तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे. EC इज इक्वल टू 5000 इंटू अंडर रूट FCK. एंड यहाँ पे एक नया टर्म है थीटा. ये थीटा क्या रहता है? थीटा इज नथिंग बट द क्रीप कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे ग्रेड हमें 30 दिया है, M30 दिया है. सो आई विल राइट हियर 5000 अंडर रूट 30 FCK डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा. अभी थीटा की क्या वैल्यू लेनी है? तो ये M30 ग्रेड मतलब क्या रहता है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज. तो थीटा भी हमें 28 डेज का ही लेना पड़ेगा. थीटा मतलब क्या है? क्रीप कोएफिशिएंट. तो 28 डेज का क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? 1.6. So after calculating this, we will get 10.533 into 10 raised to 3 Newton per mm square. So option C is the correct answer. Next objective, what is the long-term modular ratio to be used in the analysis of RC beam using working stress method of grade of concrete M25? So option A is equal to 10.98, B 13.33, C 9.9 and D 6.5. तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो फाइंड आउट करना है. किस मेथड का? वर्किंग स्ट्रेस मेथड का. ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दिया है? M25. तो लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशो वर्किंग स्ट्रेस में कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो मॉडुलर रेशो इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाय 3 इंटू सिग्मा CBC. तो ये सिग्मा CBC क्या है? इट इज नथिंग बट द परमिसिबल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट. तो IS 456 में पेज नंबर 81 पे टेबल नंबर 21 परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट ऐसा एक टेबल दिया है. वहाँ पे
ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन बेंडिंग। तो ऐसा एक कॉलम उस टेबल में दिया है, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रेड वहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेसेस कंक्रीट के बेंडिंग में कितने आते हैं कंप्रेशन में, तो वो दिया है। तो ये हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है, M25। तो उस टेबल में M25 के लिए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन दिया है 8.5, ठीक है, 8.5 दिया है, तो वो हमें सिग्मा CBC की वैल्यू लेनी है। सो आई विल राइट हियर 280 डिवाइड बाय 3 इंटू 8.5। So after calculating this, we will get the value that is 10.98. So option A is the correct answer. Next objective, the grade of M55 concrete is short in group. Option A, high strength concrete, B, standard concrete, C, ordinary concrete, and option D, none of these. तो इस ऑप्शन में हमें M55 जो कंक्रीट का ग्रेड है तो वो किस ग्रुप में आता है, और ऑप्शन दिया है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट। तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में ग्रेड आता है M10 टू M20। तो इस ग्रेड के कंक्रीट हम एज अ ऑर्डिनरी कंक्रीट ट्रीट करते हैं। वही स्टैंडर्ड में M25 से लेके M55 तक जो भी ग्रेड आते हैं तो वो स्टैंडर्ड कंक्रीट में ट्रीट करते हैं, और M60 से लेके M80 तक जो कंक्रीट आते हैं तो वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में हम ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द ग्रेड ऑफ M55 कंक्रीट इज शॉर्ट इन ग्रुप। तो M55 कौन से ग्रुप में आता है, इट इज लाइंग in the standard concrete. So option B is the correct answer. Next question, in absence of experimental test data, the approximate value of the total shrinkage strain for design may be taken. Option A 0.002, option B 0.0002, option C 0.003 and option D 0.0003। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा है अगर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेस्ट डेटा अब्सेंट है तो उस केस में टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लेनी है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इससे पहले अगर हम IS 456-2000 का पेज नंबर 16 देखेंगे तो उसमें श्रिंकेज का क्लॉज दिया है, तो उस क्लॉज में टोटल श्रिंकेज स्ट्रेन वहाँ पे मेंशन किया है। तो हम उसको अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन CC एंड इट इज इक्वल टू 0.0003। तो ये वैल्यू श्रिंकेज क्लॉज में दिया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the factors affecting on creep is option A rate of loading, B duration of loading, C stress level, and option D all of above.
तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्रीप पे कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं। तो हमें पता है क्रीप मतलब क्या है, क्रीप इज नथिंग बट द डिफॉर्मेशन इन कॉन्क्रीट ड्यू टू द सस्टेन लोडिंग, दैट इज कॉल्ड एज द क्रीप। तो ये क्रीप क्यों प्रोड्यूस होता है, इसमें रेट ऑफ लोडिंग अफेक्ट करता है, दूसरा जो लोड हम कंक्रीट पे लगाने वाले हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या है, तो ये भी फैक्टर उस पर अफेक्ट करता है, और तीसरा जो फैक्टर है तो वो है स्ट्रेस लेवल, मतलब कितना लोड वहाँ पे लगाया है तो उसका स्ट्रेस लेवल कितना है। तो ये तीनों फैक्टर क्रीप पे अफेक्ट होते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी is the correct answer, that is all of above: rate of loading, duration of loading and stress level. Next one, the partial factor of safety for concrete as per IS 456-2000 in limit state method is option A 1.15, B 1.50, C 2 and option D 3। तो इस क्वेश्चन में हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का बताना है लिमिट स्टेट मेथड के लिए। तो IS 456-2000 के पेज नंबर 68 पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल ये क्लॉज दिया है, तो उसमें कंक्रीट और स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दिया है। तो वहाँ पे कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 1.50। So option B is the correct answer. Next question, the partial factor of safety for steel as per the IS 456-2000 in limit state method is option A 1.15, B 1.5, C 2 and option D 3। तो यहाँ पे फिर से हमें स्टील का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। पेज नंबर 68 पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल एक क्लॉज दिया है, वहाँ पे कंक्रीट और स्टील का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो वो गिवन है। तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 1.15। सो ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ऑप्शन ए FCK, B 0.65 FCK by gamma, C 0.67 FCK and option D gamma into FCK। तो इस क्वेश्चन में हमें डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ये निकालना है। तो डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो इट विल बी फाइंड आउट by taking the ratio of characteristic strength of concrete, that is FCK, divided by partial safety factor for that material। तो यहाँ पे हमें किसका डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, कंक्रीट का। तो कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना है, 1.5। सो FCK is equal to partial safety factor for concrete is 1.5। so it will give 0.67 FCK। so option C is the correct answer, that is 0.67 FCK। next one, in working stress method the factor of safety for concrete in compression in bending is taken as option A 1.5, B 2, C 3 and option D 3.5। तो यहाँ पे देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए निकालना है इन कॉम्प्रेशन इन बेंडिंग। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम कंक्रीट के लिए
फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं? 3. So option C is the correct answer. So next question, in working stress method the factor of safety for steel in tension is taken as option A 1, B 1.5, C 1.8 and option D 2. तो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इन टेंशन ये हमें बताना है। तो स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कितना लेते हैं? 1.8. So option C is the correct answer. Next one, minimum grade of concrete to be used in reinforced concrete is option A M10, B M15, C M20 and D M25. तो यहाँ पे रेनफोर्स्ड कंक्रीट में मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं? तो आरसीसी में हम मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेते हैं? M20. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, इफ क्रीप कोएफिशिएंट फॉर कंक्रीट एट 7 days is K1 and at 28 days is K2, then option A K1 is less than K2, B K1 is greater than K2, C K1 is equal to K2 and option D all of above. तो यहाँ पे क्रीप कोएफिशिएंट दिए हैं कंक्रीट के फॉर 7 days एंड फॉर 28 days. तो हमें क्रीप कोएफिशिएंट पता है 7 days और 28 days के लिए. 7 days का क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? 2.2 और 28 days का 1.6. तो यहाँ पे ये कंडीशन दिए है, तो इसमें से कौन सी कंडीशन बराबर है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे लेट सपोज 7 days का क्रीप कोएफिशिएंट कितना है? 2.2. सो आई विल राइट हियर K1 is equal to 2.2 and K2 is equal to 1.6. तो इसमें से कौन सी कंडीशन बराबर है? अगर ये क्रीप ऑफ कोएफिशिएंट 7 और 28 डेज के लिए है, तो इसमें देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है. फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं. K1 इज लेस देन K2. K1 इज लेस देन K2. तो K1 कितना है? 2.2. 2.2 is less than K2 1.6. So this is wrong. So this condition is wrong in this case. Second one, K1 is greater than K2. तो K1 कितना है? 2.2 is greater than 1.6. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. So option B is the correct answer. That is K1 is greater than K2. Next one, for reinforced concrete exposed to sulfate attack, minimum grade required is option A M10, B M15, C M20 and D M25. तो IS कोड में दिया है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना लेना है आरसीसी के लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए? M20. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज M20. And last one, with the increase in rate of loading during testing, compressive strength of concrete, option A increases, B decreases, C does not change and D none of above. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, with the increase in rate of loading during testing, compressive strength of concrete. अगर हमने रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज किया
ड्यूरिंग द टेस्टिंग। रेट ऑफ लोडिंग इंक्रीज किया तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट भी इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज increases. With the increase in rate of loading during testing, the compressive strength of concrete also increases.